Good morning, dear students. How are you all? I think you might be fine. Dear students, today we are going to start with a new lesson, and that is safety and first aid. Yes, you should be safe everywhere, and by chance, if you come across some minor accident, you should give some immediate aid. This immediate aid given to a sick person is known as a first aid, or to an injured person is known as first aid. Now, dear students, let's start with the lesson. But do you know what are these? Yes. So, dear students, what are you able to see here? Yes. These are the some things that we find in a first aid kit. Bandage is there, gloves is there, gauze is there, right? Torch is there, thermometer is there, mask is there. So these are some of the mainly used things from our first aid kit, right? Now, dear students, let's start with the introductory part. An accident may occur anytime. Yes, you should be quite vigilant enough. कहीं पे भी accident हो सकता है. They usually happen when we are not careful. Yes, accidents पता कब होते हैं? जब हम लोग careful नहीं हैं. So we must always be careful, whether at home, at school, in the playground, or on the road. By being careful, we can avoid or lessen the impact of most of the accidents. You had seen some of the ways in which how we can avoid the accident in school, in playground, on a road in your last class. Now in this class, we are going to take up about the first aid. How and what kind of first aid can we give to the person who is suffering. So बच्चे सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि what do you understand by a first aid? Yes, when I am talking about a first aid is given to a person who has met with an accident और उसको immediate attention चाहिए. जब एक person को immediate attention चाहिए होती है तो हम उसको क्या देते हैं? First aid. The immediate help given to a sick or an injured person before taking him or her to a doctor is called first aid. So you should remember the immediate help जो हम लोग किसी sick और injured person को देते हैं before we take him or her to a doctor is called first aid. और first aid हमारे को कैसे help कर सकती है? It can save a person's life. It can relieve pain till the doctor arrives. It can prevent the condition of the victim before getting worse. Let's take an example. अब you just see on the road a person is dying, तो आप क्या उसको वहीं सड़क पे छोड़ जाओगे? नहीं, हमारे को जाना चाहिए, हमें उसको पिक करना चाहिए और हमारे को पिक कर उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड देना चाहिए. अगर आप उसको फर्स्ट एड नहीं दोगे तो देयर कैन बी इमीडिएट ब्लड लॉस. इज दैट क्लियर? एंड अ पर्सन कैन डाई. अब घर में भी ऐसे होता है, कोई छोटी सी चोट लग जाती है तो हम इमीडिएटली थोड़ा ना डॉक्टर के रश करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनको इमीडिएट एड देते हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस इमीडिएट एड इज नथिंग बट फर्स्ट एड. नाउ बच्चे लेट्स सी टू इट. फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वुंड्स. अगर आपके कहीं पे भी छोटा सा भी कट लगा हुआ है ना बच्चे, दिस मीन्स इट इज़ अ एंट्री टू द जर्म इनटू योर बॉडी. जर्म्स आपकी बॉडी में तब एंटर कर सकते हैं आराम से. इट कैन बी अ वायरस, इट कैन बी अ प्रोटोजोआ यू हैड टेकन अप. So they can easily enter your body. Pathogens can enter your body. So germs can enter the body through uncovered cuts and wounds and can cause infection. और वो infection को lead कर सकते हैं. So we should not ignore the cuts and wounds, however minor. चाहे एक minor क्यों ना हो हमारा एक wound या cut, हमारे को उसको भी ignore नहीं करना चाहिए. You know what you should do? Wash it properly, Dettol लगाओ, कोई भी क्रीम एंटीसेप्टिक लगाओ, या अगर आप लोगों को लगता है तो आप उसको कवर भी करो. इज दैट क्लियर? एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तो टेटनस का इंजेक्शन लगने वाला है तो वी शुड एक्चुअली गो फॉर अ टेटनस इंजेक्शन. अगर किसी आयरन की चीज़ से हमारे को चोट लगी है तो राइट. सो लेट्स गो फॉर द रीडिंग. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर गिविंग अ फर्स्ट एड. हम लोगों ने जब फर्स्ट एड देना है तो हमारे को अपने हैंड्स को सोप से और वाटर से वॉश करना चाहिए. इफ़ द कट इज स्मॉल, अगर कट छोटा है, क्लीन इट अप, हमारे को उसको क्लीन कर देना है. इज दैट क्लियर?
क्लीन करना है विद अ पीस ऑफ कॉटन डिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सच एज डिटोल. डिटोल से वॉश करो. ड्राई इट एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और पुट अ बैंडेज ओवर द वूंड. आप उस ड्राई करो और एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ और उसके ऊपर बैंडेज करो. राइट. टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम डीप कट्स, take some cotton wool or take a thick pad of sterile gauze and press it over the wound. अगर बहुत ज़्यादा bleeding हो रही है बच्चे, हमारे को उसके ऊपर प्रेस करना चाहिए किसी भी गॉज के साथ. You can also press down on the cotton with your thumb and fingers to stop the bleeding. आप उसको बहुत प्रेशर से भी प्रेस कर सकते हो. जब आप उसके ऊपर प्रेशर करोगे तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. Now then टाई इट टाइटली विद द बैंडेज. और जब आपने प्रेस कर दिया, उसके ऊपर गॉज लगा दी डिटोल से क्लियर कर उसके बाद आप उसको टाइटली बैंडेज के साथ बांध दोगे. बच्चे इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा बड़ा वूंड है तो वी शुड इमीडिएटली रश द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर. एन एंटी टेटनस इंजेक्शन may also be required if the cut has been caused due to a rusted piece of iron such as nail or any other dirty object. अगर आप सड़क पे गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा चोट लगती है, या अगर आप लोगों को सपोज़ करो कि कोई नेल लग जाता है, नेल का मतलब कील लग जाता है, या कोई आयरन की कोई चीज़ लग जाती है, तब आपको टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा लेना चाहिए. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज़ द फर्स्ट एड फ्रॉम स्प्रेन्स. व्हाट इज़ अ स्प्रेन? आप चल रहे थे, चलते चलते पैर मुड़ गया. सो रहे थे, सोते सोते आपकी बाजू आपके सिर के नीचे आ गई एंड व्हाट हैपन? There is a sprain. Is that clear? So sprain can be particularly what? It can be due to the carelessness only. Is that clear? So बच्चे what to do in the case of a sprain? Sprain occurs when a part of your body turns to get or gets twisted and swells up. उसमें swelling आ जाती है. Tissues around the joint get injured and swell up. हमारे जो tissues होते हैं ना joints के पास, वो क्या हो जाते हैं? इंजर हो जाते हैं और swell up. उनके ऊपर भार आ जाना, या हम लोग कहीं मुड़ जाता है पैर हमारा तो हमारे चोट लग जाना. सो स्प्रेन्स मे बी वेरी पेनफुल ऑल्सो. इट कैन कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिसकलरेशन ऑफ स्किन. कई बार देखते हैं ना कि आपके कहीं पे स्प्रेन हो गया तो डिसकलर सी हो गई स्किन, ब्लूइश सी स्किन हो गई हमारी. सो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्प्रेन. स्वेलिंग से तो बहुत वो पोर्शन स्वेलअप हो जाता है, मोटा हो जाता है. सो हमें क्या करना चाहिए इस केस में? बच्चे यू शुड अप्लाई आइस क्यूब. कोल्ड पैक देना चाहिए, आइस पैक देना चाहिए ऑन द जॉइंट्स टू रिड्यूस द स्वेलिंग. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द स्प्रेन्ड एरिया इज़ नॉट मूव्ड मच. और आपको अपने जो स्प्रेन्ड एरिया ना उसको मूव नहीं करना चाहिए इधर उधर. यू शुड वेयर अ क्रेप बैंडेज. क्रेप बैंडेज आती है, हमारे को क्रेप बैंडेज को टाई करना चाहिए ओवर द ट्विस्टेड एरिया. एंड अननेसेसरी मूवमेंट से बचना चाहिए क्योंकि ये अननेसेसरी मूवमेंट कैन अगेन लीड टू मोर प्रॉब्लम्स. इज दैट क्लियर? सो यू शुड रिमेंबर, अगर आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, मदर इज टाइंग अ बैंडेज. इट्स अ क्रेप बैंडेज ऑन द स्प्रेन. राइट? सो दिस वे वी कैन गिव immediate first aid for the sprains. Remember, ice pack. After the ice pack, you can go for the crepe bandage. Now, बच्चे लेट्स सी, अब कई बार देखते हैं ना कई बच्चों का नोज़ ब्लीड करने लग जाता है, बहुत गर्मी के कारण भी ऐसा हो जाता है. सो इन चिल्ड्रन ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ इज़ वेरी कॉमन. आपको पता है क्या करना चाहिए? पहले तो पानी डालकर नोज़ ब्लीडिंग को रोकना चाहिए, फिर हमारे को बच्चे को लेटा देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस लेवल में कि हेड इज़ थोड़ा सा ऊपर. इज दैट क्लियर? व्हेन अ पर्सन सिट इन अ कंफर्टेबल अपराइट पोजिशन with his head leaned slightly forward, ask the patient to put a wet handkerchief over the nose. Wet handkerchief over the nose, या उसके हेड पे हमारे को ठंडा पानी भी डाल सकते हैं. Do this until the bleeding stops. ये तब तक करना चाहिए जब तक bleeding stop नहीं हो जाती. Then put the ice pack over the nose. हमें ice pack nose पे लगा देना चाहिए. This would ensure that bleeding does not start again. जब आप ice pack लगाओगे ना बच्चे, तो दोबारा से वो bleeding start नहीं होगी. Ask the patient also to breathe through the mouth for some time. पेशेंट को हमारे को ऐसे कर कर लेटा देना चाहिए और हमें उसको बोलना चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए वो अपने माउथ से ब्रीथ करे. एंड इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर. और अभी भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो हमें इमिडिएटली
फर्स्ट एड दे दिया आपने, आइस पैक लगा दिया, अभी भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो हमें इमीडिएटली पेशेंट को कहाँ लेके जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। स्टूडेंट्स, लेट्स सी द फर्स्ट एड फ्रॉम द फ्रैक्चर. व्हेन अ बोन इन द बॉडी टिश्यू ब्रेक्स और क्रैक्स, आपको पता है किसके कारण से? क्योंकि हम लोग केयरलेस थे, वी वर वॉकिंग और वी वर रनिंग, वी फेल डाउन, जिसके कारण से वहाँ पर ब्रेकेज हो गई बोन की. और जब बोन की ब्रेक होता है ना बच्चे, बोन जब ब्रेक होता है, इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम. आपकी जो बोन्स है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैल्शियम नहीं है उनके अंदर. अच्छा, सो इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर. व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट अ फ्रैक्चर. नाउ द फ्रैक्चर्ड बोन कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन. जो हमारी फ्रैक्चर्ड बोन होती है ना बच्चे, उसके कारण से बहुत ज़्यादा पेन होती है. हम लोग फ्रैक्चर को घर पे ट्रीट नहीं कर सकते, हमारे को बच्चे को डॉक्टर के तो लेकर जाना ही पड़ेगा. हाँ, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल ना हो. सो बच्चे, जस्ट सी टू इट, व्हाट कैन वी डू? यूज़ अ स्प्लिंट आता है जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स. Any easily available article such as a magazine, a piece of cardboard or a wood or a pillow around the injured bone can act as a splint, right? Splint. A piece of cloth that is easily available, such as a muffler, towel or a dupatta, can be wrapped around the neck and used as a sling. हमारे को स्लिंग भी बना देना चाहिए और हमारे को स्प्लिंट भी बना देना चाहिए. You should remember, and then immediately we should take the doctor to the hospital, right? फिर हमारे को डॉक्टर कहाँ पर लेके जाना चाहिए? We should take the person to the hospital. A sling is a triangular piece of cloth, जैसे कि वो मफलर भी हो सकता है, जो कि हम नेक के अराउंड वेयर करते हैं अगर हमारी हैंड की बोन में कोई प्रॉब्लम है. लाइक दिस पर्सन इज वेयरिंग अ स्लिंग हियर, और फुट के ऊपर और हैंड के ऊपर फ्रैक्चर है तो यहाँ पर स्प्लिंट वेयर किया हुआ है. So you should then take the patient immediately to the doctor for the further treatment. So dear students, let's see now the next topic. Next topic is about the burns. अब आप लोगों को पता है कई बार खेलते खेलते या कई बार किसी और अनरीजन्स के कारण से कोई बच्चे फायर से प्ले कर रहे हैं, कोई बच्चे सुनते नहीं अपने पेरेंट्स की, तो कई बार बर्न्स हो जाते हैं. So burns can be caused by boiling water, steam, hot objects, crackers, chemicals like acids. Burns can be minor or severe. Burns minor भी हो सकते हैं, severe भी हो सकते हैं, chemical burns भी हो सकते हैं, right? So बच्चे, you should remember one thing. Minor burns हैं तो आप क्या करोगे? The skin turns red. जब minor हो जाता है ना बच्चे, तो हमारी जो skin होती है ना वो red हो जाती है, and एक पेनफुल टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है ओवर द इफेक्टेड एरिया. तो माइनर बर्न्स को तो हम लोग घर पे ही ट्रीट कर लेते हैं. सबसे पहले तो जहाँ पर बर्न्स हुए, गर्म पानी गिरा है या आपका गर्म किसी सरफेस से टच हो गया, वहाँ पर आप सबसे पहले तो ठंडा पानी डालो, आइस लगाओ, बर्नॉल लगा सकते हो. इवन इफ घर के अंदर कोलगेट इज़ अवेलेबल ना, यू कैन अप्लाई कोलगेट ऑन दैट ऑल्सो. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. In the absence of an antiseptic lotion, apply a paste of baking soda and water on the burn. So a paste of baking soda removes the pain and even the burning sensation immediately. तो जब हम वो पेस्ट लगाएंगे ना बेकिंग सोडा की और वाटर की, तो उसके कारण से भी जो बर्निंग सेंसेशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी. Now बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज़ व्हाट इज सीवियर बर्न्स. अगर बहुत सीवियर बर्न्स हो गए हैं, ब्लिस्टर्स हो गए हैं, तब हमारे को क्या करना चाहिए? Now severe burns can be treated by the following ways. In case, और एक और बात, जो severe burns होते हैं ना बेटा, उनको हमारे को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए. We should cover them after the proper curing them, and then we should immediately take a person to the doctor also. क्योंकि ऐसे तो उसके ऊपर फ्लाइज बैठेंगी, फिर और जर्म्स आ जाएंगे, फिर और इन्फेक्शन का डर हो जाएगा. So severe burns can be treated by following ways. In case of severe burn, never try to prick a blister, right? बच्चे, जस्ट सी टू इट. अब यहाँ पर एक फ़र्स्ट एड है. फ़र्स्ट एड कैसे दोगे? सबसे पहले कूल विद द रनिंग वाटर, कवर द बर्न एंड इमीडिएटली कॉल द असिस्टेंट. इज दैट क्लियर? असिस्टेंट मीन्स डॉक्टर, राइट? सो लेट्स सी टू इट. एन ओपन ब्लिस्टर कैन ईजिली कैच इन्फेक्शन. मैंने आपको बताया ना, अगर कोई भी ब्लिस्टर है, ओपन है, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकती है. Therefore, it is advisable to gently cover the burn with a piece of cloth
टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन। इसीलिए हमारे को इसको एक पीस ऑफ क्लॉथ के साथ कवर करना चाहिए ताकि आगे फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो। Dip a sterile piece of cloth in a solution of baking soda and apply it on the burnt area. हमारे को बेकिंग सोडा के अंदर वो एक स्टेराइल क्लॉथ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेराइल क्लॉथ? स्टेराइल क्लॉथ का मतलब जो स्टरलाइज्ड क्लॉथ होता है उसको हमारे को बेकिंग सोडा में डालना चाहिए और फिर उसको बर्नट एरिया में डालना चाहिए, लगाना चाहिए। डियर बच्चे, आपको पता है हम स्टेराइल पीस ऑफ क्लॉथ क्यों ले लें? कोई भी क्लॉथ का टुकड़ा उठा लिया उससे तो जर्म्स आ जाएंगे, इसीलिए पहले हमारे को उसको स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज कर कर फिर ही हम उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, उस क्लॉथ को यूज़ कर सकते हैं। सीवियर बर्न्स शुड बी ट्रीटेड ओनली बाय अ डॉक्टर। नाउ बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट ए केमिकल बर्न। कई बार केमिकल से भी बर्न्स हो जाते हैं। केमिकल से जनरली घर पे तो नहीं होते, बट हाँ फैक्ट्रीज़ में हो जाते हैं। तो अगर केमिकल से बर्न्स होते हैं बच्चे, तो ये प्रोफेशनली डॉक्टर से ही ट्रीट होने चाहिए। रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द इफेक्टेड एरिया। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें तब तक वाटर डालना है जब तक कि केमिकल का इफेक्ट कम नहीं होने लग जाता। Even cover the burnt skin and the area with a sterile gauze and consult the doctor. Let's see to it. अगर chemical burns हैं तो immediately ensure कि हम लोग क्या safety दे सकते हैं। Is that clear? केमिकल्स को तब तक वॉश करते रहना चाहिए इफेक्टेड एरिया से जब तक कि उसका इफेक्ट थोड़ा कम नहीं हो जाता। देन इमीडिएटली वी शुड टेक अ पेशेंट टू द हॉस्पिटल। इज दैट क्लियर? सो आई होप बच्चे all these safety measures are perfectly clear to you, so you should follow these first aid measures at home. And remember, first aid is really important. Why? Because it can save the life of a person. So please read your chapter till here, and if you don't understand anything, you can clear all your doubts. Thank you for now.